There are no secret to success. Success is the sum of small efforts, repeated day in and day out. It is the result of preparation, hard work, discipline, and learning from the failure. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. Today I am going to start a new series on the drafting, pleading and convincing. That is one of the subject for all the law students. In this series, I will discuss with the civil pleadings, that is plaint, written statement, interlocutory applications, original plaints, affidavit, executed petitions, memorandum of appeal, petition under the Article 32 and 226 of the Constitution. If we talk about the criminal pleadings, that is the part 2. In the criminal pleading, I will discuss with the complaint, criminal miscellaneous petitions, bail application, memorandum of appeal and revision. And the third part will be that is relating to the conveyancing. In the conveyancing, we will discuss with the essentials of deeds, sale deeds, mortgage deed, lease deed, gift deed, promissory notes and receipt, power of attorney, will and agreements. This is our syllabus that I will discuss in this series. Firstly, I am going to start with the first portion, that is the drafting, pleading and conveyancing, that is the introductory portion. If we talk about these three words, drafting, pleading and conveyancing, these are the three main words which are generally used in the legal sector, in the law sector. If we talk about the word drafting, drafting means act of preparing the legal documents. It is the art of preparing the legal documents, just like contracts, agreements, deeds. In drafting, not only right words are required, but also the concepts are required. If we talk about the word conveyancing, conveyancing means transferring of real property to the new owner by the means of deed. If we talk about the word pleading, that refers to the legal documents filed in a suit, that is the plaint and written statement. So these are the documents required for the purpose of initiation of litigations in contract law. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जब आप देखते हैं लीगल सेक्टर जो होता है उसके अंदर आप तीन तरह के वर्ड यूज करते हैं, ड्राफ्टिंग, सेकंड वर्ड इज प्लीडिंग, थर्ड वर्ड इज कन्विंसिंग. जैसे कि मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग में ड्राफ्ट तैयार करना, किसी भी कानूनी दस्तावेज से संबंधित जो ड्राफ्ट आप तैयार करते हैं, जैसे कि आप कोई समझौते से संबंधित कोई ड्राफ्ट तैयार करते हैं या कोई भी डीड तैयार करते हैं या फिर किसी भी प्लेंट को आप तैयार करते हैं, तो वो सारे के सारे जो आप ड्राफ्ट तैयार करते हैं तो उसके लिए केवल आप ये कहेंगे कि केवल एक राइट वर्ड नहीं चाहिए, केवल सही वर्डों का चुनाव ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके लिए आपको कंसेप्ट का ज्ञान होना भी चाहिए. इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड कन्वेंसिंग, जैसे मैंने आपको बताया जो सेकंड वर्ड है दैट इज कन्वेंसिंग. कन्वेंसिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब किसी आप अचल संपत्ति को एक रियल ओनर से, जो उसका वास्तविक मालिक है, यदि आप किसी नए ओनर को उसको प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए डीड तैयार की जाती है. जैसे कि आपने देखा होगा सेल डीड, सेल के द्वारा जब प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए सेल डीड तैयार करेंगे. इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर बाय वे ऑफ मोर्टगेज तो उसके लिए मोर्टगेज डीड तैयार की जाती है. इफ द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर बाय वे ऑफ गिफ्ट, यदि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो गिफ्ट डीड तैयार की जाती है. तो ये जो डीड्स तैयार की जाती है इसी को तैयार करने को, क्योंकि इसके द्वारा प्रॉपर्टी को आप ट्रांसफर कर रहे हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, अ पर्सन हु इज द रियल ओनर टू इट्स न्यू ओनर. एक जो वास्तविक मालिक है उससे उसके द्वारा एक नए मालिक को प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है. उसके लिए जो डीड तैयार की जाती है उसको कन्वेंसिंग कहा जाता है. इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड प्लीडिंग, जैसे मैंने आपसे बताया प्लीडिंग मीन्स प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट. जब आप प्लेंट की बात करते हैं, प्लीडिंग की बात करते हैं, तो ये प्लीडिंग जो होती है ये लीगल डॉक्यूमेंट से संबंधित होती है, जो कहीं भी किसी भी कोर्ट के अंदर, किसी भी न्यायालय के अंदर वाद को शुरू करने के लिए फाइल की जाती है. प्लीडिंग जब आप देखते हैं कि जब भी आप कोर्ट की बात करते हैं तो वहां पे आपने देखा कि दो तरह की पार्टीज आपको देखने को मिलती है. एक होता है वादी, दूसरा होता है प्रतिवादी. वन इज प्लेंट, अनदर इज डिफेंडेंट, प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट. जब हम पार्टीज की बात करते हैं प्लेंटिफ या डिफेंडेंट, तो उनके द्वारा अलग अलग तरह की प्लीडिंग फाइल की जाती है. जब भी किसी वादी को अपना वाद कोर्ट के अंदर समक्ष लाना होता है तो उसके लिए वो जो प्लीडिंग तैयार करता है उसी को प्लेंट कहा जाता है. और दूसरी प्लीडिंग क्या होती है जो डिफेंडेंट के द्वारा फाइल की जाती है.
जब कोई वाद कोर्ट के अंदर जब भी किसी प्रतिवादी के विरुद्ध लाया जाता है तो प्रतिवादी को कोर्ट के द्वारा समन इश्यू किए जाते हैं और वहां पर समन के द्वारा ये कहा जाता है कि आपको अपने जो वाद आपके लिए लाया गया, आपके विपरीत लाया गया है, आपको इसका जवाब देना है। और वो जो डिफेंडेंट है वो उस प्लीडिंग का जवाब देगा। क्या उसके लिए वो एक प्लीडिंग फाइल करेगा जिसको रिटर्न स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। तो जब हम प्लीडिंग की बात करते हैं तो प्लीडिंग एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जो दो वर्डों का कॉम्बिनेशन है, प्लेंट प्लस रिटर्न स्टेटमेंट। प्लेंट जो प्लेंटिव के द्वारा, वादी के द्वारा फाइल की जाती है अपने सूट को इंस्टीट्यूट करने के पर्पज से। तो प्लेंट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिव in order to institute the suit in the court of law, while the written statement is filed by the defendant while giving the answer of the plaintiff, whether he rejects the particular fact or he admits the particular fact। तो वहां पर जो डिफेंडेंट के द्वारा जो रिटन स्टेटमेंट दी जाती है उसके अंदर ये बताया जाता है कि क्या जो फैक्ट, जो उसके ऊपर जो तथ्य बताए गए उसके बारे में प्लेंट के अंदर, क्या वो उसको स्वीकार करता है या उसे रिजेक्ट करता है। तो वहां पे उसके लिए वो एक रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है। सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ इनिशिएशन ऑफ लिटिगेशन इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो प्लेंट जो होता है या रिटन स्टेटमेंट होती है, ये ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष किसी भी वाद को शुरू करने के पर्पज से लाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। इफ यू टॉक अबाउट द वर्ड प्लीडिंग, दैट इज डिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 6 प्लीडिंग के बारे में डिस्क्राइब करता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 6, प्लीडिंग मे बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्लेंट एंड अदर इज रिटन स्टेटमेंट। यदि हम सेक्शन 6 की बात करते हैं सीपीसी के, तो वहां पे दो तरह की प्लीडिंग का जिक्र किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेंट प्लस रिटन स्टेटमेंट। तो प्लीडिंग इज एन आर्ट विच रिक्वायर्स नॉट ओनली टेक्निकल और लिंग्विस्टिक स्किल बट आल्सो रिक्वायर्स द एक्सपर्ट हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ ऑन द गिवन पॉइंट दैट इज बिफोर द लायर, दैट इज ब्रॉट बिफोर अ लायर। जिसमें प्लीडिंग जो है एक ऐसी कला है जिसके लिए केवल ना ही टेक्निकल या मतलब लैंग्वेज का ज्ञान होना जरूरी है, बट आल्सो इसके लिए कानून का समक्ष नॉलेज होना, पूरा एक्सपर्ट होना उसके अंदर, वो भी जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई वाद किसी भी लायर के समक्ष, किसी भी एडवोकेट के समक्ष लाया जाता है तो उसको प्लीडिंग का ज्ञान होना चाहिए, तभी वो प्लीडिंग अपने जो डॉक्यूमेंट है वो तैयार कर पाएगा। Thus, in a pleading, ultimately what matters is how clearly and systematically the facts have been presented before the court of law। जब भी कोई प्लीडिंग कोर्ट के समक्ष लाई जाती है, कोर्ट के अंदर कोई प्लीडिंग फाइल की जाती है, तो जनरली यही मैटर करता है कि आपने कितनी स्पष्टता से और सिस्टेमेटिकली तरीके से अपने तथ्यों को प्रस्तुत किया है। In order to seek assistance of the court in any matter, each party must have to prepare a statement of his claim and also the fact on which such claims are found। यदि हम कोई कोर्ट की सहायता लेना चाहते हैं, जब हम न्यायालय की अपने वाद को सुलझाने हेतु जब कोई न्यायालय की सहायता लेना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष अपने क्लेम को प्लीडिंग के द्वारा प्रस्तुत करना पड़ता है और उसी के द्वारा हम अपने तथ्यों, जो भी वाद से संबंधित जो तथ्य हैं, उनको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। सो द प्लीडिंग्स आर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ लिटिगेशंस, as it is impossible for a court of law to do justice unless and until the court of justice is fully aware about the claims and contentions of the plaintiff and the counterclaim and defenses made by the plaintiff or the defendant। जिसमें जब भी कोई प्लीडिंग कोर्ट के समक्ष लाई जाती है, तो ये तो प्लीडिंग होती है, ये एक तरह की फाउंडेशन स्टोन है हर तरह की लिटिगेशन के लिए, हर तरह के वाद के लिए। जितने भी वाद कोर्ट के समक्ष लाए जाते हैं, तो उसकी जो फाउंडेशन होती है, उसकी जो फाउंडेशन जो रखी जाती है, वो प्लीडिंग के द्वारा ही रखी जाती है। मीन्स कोर्ट के समक्ष उस वाद के बारे में कोर्ट को जो जानकारी दी जाती है, वो प्लीडिंग के द्वारा ही दी जाती है। यदि ये प्लीडिंग ना हो तो कोर्ट के द्वारा न्याय करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। क्योंकि अनलेस अनटिल द कोर्ट ऑफ जस्टिस इज फुली अवेयर, क्योंकि कोर्ट को उसके तथ्यों के बारे में पूरा ज्ञान प्लीडिंग के द्वारा ही होता है।
और जब तक वो कोर्ट को तथ्यों का ज्ञान नहीं होगा तो वो न्याय करने में सक्षम नहीं हो पाएगी। If we talk about the types of pleading, there can be two types of pleading. यदि हम pleading की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरह की pleading आपको देखने को मिलती है. One is civil pleading and second one is criminal proceeding. If we talk about the civil pleading, it includes plaint, written statement, interlocutory applications, original petitions, affidavits, execution petitions, memorandum of appeal, petition under Article 32 and 26 of the Constitution. These all are coming under the category of civil pleadings. If we talk about the criminal proceedings, it includes complaint, criminal miscellaneous petitions, bail application, memorandum of appeal and revision. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब वाद की बात करते हैं तो दो तरह वाद आपको देखने को मिलते हैं. एक तो होता है सिविल मुकदमे, दीवानी मुकदमे जिन्हें हम कहते हैं, और दूसरे होते हैं फौजदारी मुकदमे मीन्स क्रिमिनल केसेस. जितने भी सिविल केसेस होते हैं उनके अंदर सिविल प्लीडिंग तैयार की जाती है. दीवानी मुकदमे के अंदर दीवानी प्लीडिंग हमें फाइल करनी पड़ती है. जबकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की बात करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आर इनिशिएटेड बाय फाइलिंग द क्रिमिनल प्लीडिंग्स. क्रिमिनल प्लीडिंग के द्वारा ही क्रिमिनल जो कंप्लेंट होती है वो फाइल की जाती है. तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो दीवानी मुकदमे होते हैं जनरली वो दे आर नॉट मोर ऑफ सीरियस नेचर, वेयर देर इज प्रोविजन फॉर द कंपनसेशन ओनली, जहाँ पे आप कंपनसेशन का प्रावधान होता है. तो जितने भी सिविल प्लीडिंग्स होती है उनके अंदर प्लेंट के द्वारा कोर्ट के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जाता है और उसी के वाद का जवाब देने हेतु डिफेंडेंट रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है. और इसके अलावा आप देखेंगे तो इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशंस भी प्रस्तुत की जाती हैं. इसके अलावा आप देखेंगे ओरिजिनल पेटिशंस, एफिडेविट भी तैयार किए जाते हैं, एग्जीक्यूशन पेटिशंस. इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अपील, पेटिशन अंडर आर्टिकल 32 एंड 226. आपने सुना होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब भी हमारे किसी अधिकार की अवहेलना की जाती है, हनन किया जाता है, तो उसके दौरान आप देखते हैं तो आर्टिकल 32 के द्वारा आप कोर्ट के समक्ष अपनी एक रिट पेटिशन फाइल कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट. एंड अंडर आर्टिकल 226 आप देखते हैं कि हाई कोर्ट के समक्ष अपनी रिट पेटिशन इन द केस ऑफ वायलेशन ऑफ यूर fundamental rights that are provided by the part 3 of the Constitution of India. In case of violation of any of those rights, you can file a writ petition to the High Court under Article 226. So these petitions are prepared through the civil pleadings. ये civil pleading के अंदर आते हैं. If we talk about the criminal pleadings, जैसे मैंने आपको बताया, उसके अंदर जब criminal pleadings की बात करते हैं तो वहां पे कंप्लेंट फाइल होती है हमेशा. इसके अलावा आप क्रिमिनल मिसलेनियस पेटिशंस डाले जाते हैं, या फिर आपको जब कोई बेल लेनी होती है तो उसके लिए आपको बेल एप्लीकेशन लगानी पड़ती है. इसके अलावा आप देखेंगे मेमोरेंडम ऑफ अपील और जो रिवीजन होते हैं दे आर आल्सो कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ क्रिमिनल प्लीडिंग्स. तो ये सारी की सारी मैंने आपको बताया कि जो प्लीडिंग्स होती हैं ये सिविल और क्रिमिनल दो तरह की प्लीडिंग आपको देखने को मिलती है. तो इन्हीं के ड्राफ्ट आप तैयार किए जाते हैं और ये सारी के सारी प्लीडिंग के अंदर ही आते हैं. If we talk about the fundamental rules of pleading, यदि हम fundamental rules of pleading की बात करते हैं, the English law of pleading has got 4 fundamental rules upon which Order 6 of the CPC is based. इंग्लिश लॉ के हिसाब से प्लीडिंग के 4 मूलभूत नियम बताए गए हैं जिसके आधार पे सीपीसी का जो ऑर्डर 6 है कार्य करता है, उसी के आधार पे टिका हुआ है. वो कौन कौन से 4 फंडामेंटल रूल है? सबसे पहला, every pleading must state facts and not the law. Second one is, it must state all the material facts and material facts only. Third one is, it must state only the facts on which the parties pleading relies, not the evidence by which they must be proved. And the last one is, it must state such facts concisely but with precision and certainty. जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके संबंध में 4 रूल आपको बताए गए हैं. पहला रूल मैंने आपको बताया जितनी भी प्लीडिंग्स होती हैं उनके अंदर केवल तथ्यों को बारे में बताया जाना चाहिए, ना कि कानून के बारे में. कानून को बारे में पता लगाना वो कोर्ट का काम है, न्यायालय का काम है. पार्टीज को केवल अपने तथ्यों के बारे में बताना है उसके अंदर. सेकंड वन मैंने आपको बताया जितनी भी प्लीडिंग्स होती है उनके अंदर मटेरियल फैक्ट्स ही बताए जाने चाहिए जो आपके वाद से संबंधित है. उसके अलावा जो बेकार के जो फैक्ट्स हैं उनको इसमें नहीं डाला जाना चाहिए.
थर्ड मैंने आपको बताया इट मस्ट टेक ओनली फैक्ट्स, केवल आपको केवल उन्हीं तथ्यों के बारे में यहाँ पर बताना है जिसके आधार पर पार्टीज की जो प्लीडिंग है, पार्टी का जो केस है, रिलाई करता है, टिका हुआ है उस, और आपको उन एविडेंस के बारे में कुछ नहीं बताना जिसके द्वारा उनको प्रूव किया जाना है, उनको सिद्ध किया जाना है। और जितने भी फैक्ट आप कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे प्लीडिंग के थ्रू, वो कंसाइज फॉर्म में होने चाहिए। एक मतलब ये नहीं है कि आपने उसको फैला के फालतू को बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं कहना, वो कंसाइजली दिए जाने चाहिए, बट विथ प्रिसीजन एंड सर्टेनिटी। तो ये आपको 4 फंडामेंटल रूल बताए गए हैं जिनके आधार पे सीपीसी के ऑर्डर 6 के आधार में जो प्लीडिंग दी हुई है वो टिकी हुई है, और इनका आपको ज्ञान रखना है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट रूल, जैसे मैंने आपको बताया हर प्लीडिंग के अंदर आप केवल फैक्ट बताएंगे, नोट द लॉ। तो आप इसे पूरी तरह से डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया द फर्स्ट फंडामेंटल रूल इज दैट नाइदर प्रोविजंस ऑफ द लॉ नोर द कंक्लूजन ऑफ द लॉ शुड बी alleged in the pleading. The pleading should be confined to the facts only, and it is for the judge to draw such interference from those facts as are permissible under the law, of which he is found to take the judicial notice. जैसा मैंने आपको बताया कि जो पहला जो नियम है आपका प्लीडिंग का, वो ये कहता है कि केवल आपको तथ्यों के बारे में बताना, कानून के बारे में आपको नहीं बताना, और वो भी जो बताए जाएंगे, तथ्य बताए जाएंगे, वो एक कंसाइज फॉर्म में बताए जाएंगे, प्रिसाइज फॉर्म में बताए जाएंगे। जो प्लीडिंग होती है दैट शुड बी कन्फाइंड टू फैक्ट्स ओनली, वहां पे केवल तथ्यों के ही बारे में ही बताना है। वो जज का काम है कि आपको उसको कैसे प्रूव करना है, उसके ऊपर कौन सा कानून लागू होगा, उसके बारे में आपको कुछ नहीं बताना। जैसे कि आप हम उदाहरण के लिए लेते हैं, इट इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू स्टेट दैट Abu Muhammad made a gift of his property to the plaintiff. The plaintiff should allege here the gift was made. आप वहां पे क्या कहेंगे कि भी एक प्रॉपर्टी का गिफ्ट किया गया था। आपको ये नहीं बताना कि अबू मोहम्मद ने गिफ्ट को, जो प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी, वो कैसे की थी। तो यहाँ पे आपको सारी चीज नहीं बतानी, केवल आपको ये बताना है कि प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया गया था, एंड हाउ इट वाज एक्सेप्टेड एंड हाउ पोजेशन वाज डिलीवर्ड, कैसे उसको एक्सेप्ट किया गया, कैसे उसको डिलीवर किया गया। बिकॉज दीज आर द फैक्ट्स, ये केवल फैक्ट बताने हैं, केवल आपको तथ्य के बारे में बताना है। और वैलिड गिफ्ट वाज मेड, कि यहाँ पे विच कंस्टिट्यूट भी, जिससे ये पता चले कि वो जो गिफ्ट है वो आपने किया था, सही किया था। एंड टू अलेज दैट अबू मोहम्मद मेड ए गिफ्ट विल बी कंक्लूसिव ऑफ द लॉ। सीधी बात है कि अबू मोहम्मद ने गिफ्ट किया और आपने प्रॉपर्टी को गिफ्ट किया है। फ्रॉम द फैक्ट आपको केवल उसके बारे में ही यहाँ पे बताना होगा। नोट टू बी स्टेट डायरेक्टली इन द प्लीडिंग, कि यहाँ पे केवल आपको डायरेक्टली केवल इतना ही बताना है कि एक प्रॉपर्टी का अबू मोहम्मद जी के द्वारा गिफ्ट किया गया था। उसको बारे में ये नहीं बताना कि वो गिफ्ट के मतलब कैसे किया था, या उसको वो प्रूव कोर्ट का काम है, उसको प्रूव करना कोर्ट का काम है। सेकंड, आपके इसके लिए अब लिख सकते हैं इलस्ट्रेशन, जैसे कि इन ए सूट फॉर डैमेजेस फॉर नेग्लिजेंस। मान के चलो आपने कोई नेग्लिजेंस, किसी ने उपेक्षा बरती, उसके लिए अपने नुकसानी भरपाई के लिए मुकदमा फाइल करना है। तो it is not enough for the plaintiff to state that the defendant has been guilty of negligence without showing how and in what respect he was negligent. आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि उसने उपेक्षा कैसे बरती थी। आपको सीधा यही कहना है कि उसकी उपेक्षा की वजह से, डिफेंडेंट की उपेक्षा की वजह से मेरे को नुकसान हुआ है और ये नुकसानी मुझे दिलवाई जाए। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कैसे नेग्लिजेंस उसके द्वारा बरती गई थी। वो कोर्ट का कार्य है, न्यायालय का कार्य है कि उसे कैसे प्रूव करना है। हाउ टू बिकम बाउंड टू यूज डू केयर ऑफ द प्रिवेंट, वो मतलब आपको कुछ नहीं बताना यहाँ पर। एंड द थर्ड वन इज, इसके लिए ले सकते हैं, इट इज नॉट सफिशिएंट इन ए सूट अपॉन ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द डिफेंडेंट टू मियरली प्लीड द कॉन्ट्रैक्ट इज डिसाइडेड। डिफेंडेंट मस्ट प्लीड इन व्हाट मैनर एंड बाय व्हाट मीन्स ही कंटेंडेड दैट इट वाज डिसाइडेड। आपको बस केवल ये बताना है कि आपने किसी से पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट किया, तो पार्टी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किया था उसको खत्म कर दिया गया। आपको ये नहीं बताना कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे खत्म किया गया, इन व्हाट मैनर, कैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया गया, वो कोर्ट को देखना है बाद में। वो आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताना, केवल आपको तथ्य बताने हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। तो दिस मीन्स इन एवरी प्लीडिंग देयर मस्ट बी फैक्ट्स ओनली, नॉट द लॉ। केवल आपको फैक्ट के बारे में बताना है, लॉ के बारे में नहीं बताना, डिस्कस नहीं करना। सेकंड मैंने रूल आपको बताया, मटेरियल एंड मटेरियल फैक्ट्स ओनली।
हर प्लीडिंग के अंदर जितने भी फैक्ट बताए जाते हैं वो केवल मटेरियल फैक्ट्स बताने चाहिए. दैट इज द सेकंड फंडामेंटल रूल. मीन्स एवरी प्लीडिंग मस्ट कंटेन द material and material facts only. As per Rule 6, Order 6 of the CPC, this is the second rule. Omission to observe this rule may increase the difficulty. यदि आप इस रूल को भूल जाते हैं कि आप मटेरियल फैक्ट के अलावा फालतू के फैक्ट बताते हैं तो वो आपके लिए डिफिकल्टी अराइज कर सकता है. नाउ द क्वेश्चन अराइज इज व्हाट आर द मटेरियल फैक्ट. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि मटेरियल फैक्ट कौन से फैक्ट होंगे. द फैक्ट्स विच आर असेंशियल फॉर द प्लेंटिफ कॉज ऑफ एक्शन और द डिफेंडेंट डिफेंस आर नोन एज मटेरियल फैक्ट. मीन्स प्लेंटिफ वादी के द्वारा अपने केस को प्रस्तुत करने के लिए जो तथ्य हैं केवल वही मटेरियल फैक्ट कहलाएंगे, या फिर डिफेंडेंट के द्वारा जो डिफेंस लेने के लिए जो तथ्य हैं केवल उन्हें मटेरियल फैक्ट कहा जाएगा. इट कैन बी सेड दैट द फैक्ट इज मटेरियल फॉर द प्लीडिंग्स पार्टी विच इज बाउंड टू प्रूव एट द ट्रायल. वो फैक्ट जो इसको प्रूव करना है ट्रायल के द्वारा तो केवल आपको उनका यहाँ पे जिक्र करना है, तो वही फैक्ट मटेरियल फैक्ट कहलाते हैं. जैसे मैंने आपको बताया तो हर प्लीडिंग के अंदर केवल मटेरियल फैक्टों के बारे में ही जिक्र किया जाना चाहिए, इसके अलावा कोई और फालतू फैक्ट नहीं बताने हैं. एंड द थर्ड रूल मैंने आपको बताया, फैक्ट्स नोट द एविडेंस. आप भी जितनी भी प्लीडिंग होती है उनके अंदर केवल फैक्ट्स बताए जाते हैं, एविडेंस के बारे में आपको नहीं बताना कि कैसे उसको प्रूव करना है. दिस इज द थर्ड फंडामेंटल रूल. It says that every pleading must contain a statement of facts, material facts, but not the evidence by which they must to be proved. The material facts on which the parties rely, and are the facts provenda. That is the facts to be proved, and they should be stated in the pleading. जिन फैक्ट्स को प्रूव किया जाना है केवल आपको उनके बारे में यहाँ पर जिक्र करना है. And the evidence by which facts to be proved, this is known as facts probenda, are to be proved are called the facts probendia. जिसके द्वारा उसे प्रूव करना उसे हम कहेंगे facts probendia. मीन्स फैक्ट्स प्रोबेंडा तो आपको देना है भी, जो आपके फैक्ट्स हैं जिनके ऊपर आपकी प्लीडिंग रिलाई करती है नेचुरली वो तो आपको देना है. फैक्ट्स प्रोबेंडा मस्ट बी गिवन इन द प्लीडिंग, बट फैक्ट प्रोबेंसिया बाय विच दिस फैक्ट मस्ट टू बी प्रूव्ड आर नॉट गिवन इन द प्लीडिंग. दे आर नॉट टू बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग. Fact probenda are not the facts in issue, but only the relevant facts, which will be proved at the trial in order to establish the fact in issue. For example, in a suit of damages for the malicious prosecution, the plaintiff should only allege in the plaint that the defendant was acquitted by the malice in prosecuting him. यदि आप किसी पार्टी के खिलाफ एक मुकदमा लाते हैं कि मेरे साथ उसने गलत तरीके से मेरे ऊपर मुकदमा फाइल किया है, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन किया है, तो आपको केवल ये बताना है कि उसने कैसे मैलिशियसली मतलब आपके साथ एक्ट किया है और आपने वो मैलिशियसली एक्ट करते हुए आपके ऊपर उसने मुकदमा फाइल किया था. उसे पता था कि ये मुकदमा सही नहीं है फिर भी उसने फाइल किया. तो केवल आपको यहाँ पर इतना तथ्य देना है, आपको ये नहीं बताना कि उसने कैसे मैलिशियसली एक्ट किया. वो कोर्ट का कार्य है कि वो कैसे उसे प्रूव करेगा. वो ट्रायल के द्वारा कोर्ट के द्वारा ही उसको प्रूव किया जाएगा. केवल आपको ये बताना है कि प्लेंटिफ ये कहेगा कि डिफेंडेंट ने मैलिशियसली मतलब गलत तरीके से मेरे ऊपर मुकदमा फाइल किया है और क्योंकि उसे पता था कि ये तथ्य सही नहीं है और उसने फिर भी मेरे ऊपर मुकदमा फाइल किया है. आपको इतना नहीं बताना कि वो कैसे उसने मैलिशियसली एक्ट किया है, वो कोर्ट का कार्य है कि वो कैसे प्रूव करे. तो दिस मीन्स फैक्ट्स नोट द एविडेंस मस्ट बी स्टेटेड इन द प्लीडिंग. केवल फैक्ट्स के बारे में बताना है, एविडेंस के बारे में आपको नहीं बताना. And the last rule is concise form with precision and the certainty. This means in every pleading, facts must be stated in a summary form, concise form, with certainty, clearly बताए जाने चाहिए. All the unnecessary allegations and their details should be omitted. भाई अब जो फालतू के allegations है, फालतू के इल्जाम है या डिटेल है उसको यहाँ से अवॉइड करना चाहिए, उसको इसमें नहीं देना चाहिए. प्लीजिंग इज नॉट ए प्लेस फॉर फाइन राइटिंग बट ओनली असर्शन ऑफ द हार्ड फैक्ट्स. जो प्लीडिंग होती है उसके अंदर फालतू के फैक्ट्स नहीं लिखे जाते कभी भी, केवल हार्ड फैक्ट्स लिखे जाते हैं जिसको पार्टीज की प्लीडिंग रिलाई करती है. एंड दे मस्ट बी गिवन इन द समरी फॉर्म, समराइज फॉर्म, प्रिसाइज फॉर्म, क्लियरली
precisely. It is desirable to go straight to the point and the state fact only. मतलब पॉइंट टू पॉइंट उसको दिया जाना चाहिए. The same person or the thing should be called by the same name throughout the pleading. जब भी आप प्लीडिंग लिखते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति को जिस नाम से आपने पुकारना शुरू किया है, आपने कहा कि पार्टी का नाम पार्टी नंबर 1 या फिर प्लेंटिफ, जो भी आपने नाम देना शुरू किया है, आपको केवल वही नाम पूरी उसके अंदर यूज करना है. जैसे मान के चलो एक पार्टी, एक केस के अंदर 3 डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2 और डिफेंडेंट नंबर 3. तो आप वहां पे डिफेंडेंट नंबर 1 यदि आप यूज कर रहे हैं तो उस पार्टी के लिए आपको डिफेंडेंट नंबर 1 ही यूज करना है. तो कहने का मतलब है कि जितनी भी जो भी प्लीडिंग होती है, उस पूरी प्लीडिंग के अंदर एक पार्टी को जिस नाम से भी आप डिनोट कर रहे हैं, उसी नाम के द्वारा पूरी प्लीडिंग के अंदर उसको डिनोट किया जाना चाहिए. एंड द प्लीडिंग शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ. और जितनी भी प्लीडिंग होती है उसको ये नहीं कि लगातार आप लिखते चलेंगे, दे मस्ट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ एंड ईच पैराग्राफ मस्ट कंटेन द डिफरेंट, मतलब हर पैराग्राफ के अंदर एक अलग एलिगेशन लगाया जाना चाहिए, अलग फैक्ट होना चाहिए. प्लीडिंग शैल बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ consequently and the dates and sums numbers shall be expressed in the figure. डेट है, सम है या फिगर है, जो भी आप लिखते हैं तो उसको फिगर में लिखा जाना चाहिए. Even though the pleading should be concise, it should be never obscure. It should be both concise as well as precise. The parties cannot change the case and get the relief. So these are the certain rules of the pleading that must be followed while writing the pleadings. Thus, we can say that there are certain points that must be remembered. A good pleader should bear in mind the following facts in relation to the pleading. कौन-कौन से points हैं? पहला, describe the names and place accurately. जब भी आप कोई pleading लिखते हैं, कोई भी प्लेट फाइल करते हैं, वहाँ पे नेम और प्लेस जो है वो पूरी तरह से सही से लिखे जाने चाहिए, उनकी स्पेलिंग में गलत नहीं होनी चाहिए. And one should always avoid the use of pronouns. वहाँ पे pronoun का यूज नहीं किया जाना चाहिए प्लेडिंग के अंदर. The plaintiff or the defendant should not be addressed by their name. जो plaintiff और जो defendant होते हैं उनको उनके नाम के द्वारा एड्रेस नहीं किया जाता at some place. और पूरी प्लेडिंग के अंदर यदि आप प्लेंटिफ नंबर 1 कह रहे हैं, प्लेंटिफ नंबर 2 या डिफेंडेंट नंबर 1, डिफेंडेंट नंबर 2 यूज कर रहे हैं, तो आपको उसी पूरी प्लेडिंग के अंदर उस पार्टी को उसी नाम से दिखाना होगा, शो करना होगा. इसके अलावा ए लायर शुड अलेज ऑल द फैक्ट्स बोल्डली एंड प्लेनली एंड ही शुड यूज लैंग्वेज ऑफ द डॉक्यूमेंट. वहाँ पे एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है किस डॉक्यूमेंट को लिखने की, उस लैंग्वेज का ही यूज किया जाना चाहिए. एंड ही शुड नॉट इन्वेंट द ओन लैंग्वेज. उसको अपनी लैंग्वेज को नहीं उसमें दिखाना. फॉर एग्जाम्पल, if a policy becomes wide in case, he assured shall die of his own hand. Now in this case, while drafting the pleading instead, the assured killed himself or he committed suicide. Plead that the assured died in his own hand. तो जिसमें हर प्लीडिंग के अंदर जो भी चीज लिखी जाती है लॉयर के द्वारा, वो पूरी तरह से बोल्डली और प्लेनली लिखी जाती है. उसके अंदर फालतू की चीजें कभी भी नहीं दी जाती. और वहां पे जो लैंग्वेज यूज की जाती है वो एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है जो डॉक्यूमेंट के लिए यूज की जाती है, उसी का यूज किया जाना चाहिए. आपको अपनी लैंग्वेज का यूज नहीं करना उसके अंदर. एंड द लायर शुड अलेज ऑल द फैक्ट्स बोल्डली, जैसे मैंने आपको बता दिया. एंड एवरी प्लीडिंग शैल बी साइंड बाय द पार्टी. जितनी भी प्लीडिंग होती है उस पार्टीज के द्वारा, चाहे वो प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है, उनके द्वारा साइन किया जाना चाहिए. और यदि और उसके अलावा जो भी वो एडवोकेट हायर करता है अपने लिए, उसके द्वारा भी उसको साइन किया जाना चाहिए. द पार्टी इज अनेबल टू साइन, यदि वो पार्टी खुद साइन नहीं कर सकती तो वो अपने एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू या एजेंट के थ्रू वो साइन करवा सकती है. एंड एवरी प्लीडिंग शैल बी वेरीफाइड बाय द पार्टी और द पार्टीज. जो भी जब यदि एक पार्टी है तो एक पार्टी, और यदि कई पार्टीज है तो उनके सबके द्वारा उसको वेरीफाई किया जाना चाहिए. एंड वेरिफिकेशन कैन शुड आल्सो बी मेड बाय एनी अदर पर्सन इफ acquainted with the facts of the pleading. And the false verification of the offense punishable by the Indian Penal Code. यदि आप वेरिफिकेशन को गलत करते हैं, गलत तरीके से उसे लिखते हैं, मतलब उसके वो सारे फैक्ट्स आप मतलब गलत तरीके से दिए जा रहे हैं, तो आपको उसको पनिश किया जा सकता है आईपीसी के तहत. एंड इन केस वे द कॉर्पोरेशन इज अ पार्टी, प्लीडिंग में बी वेरीफाइड बाय द सेक्रेटरी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इंस्टीट्यूशन. यदि किसी कॉर्पोरेशन के द्वारा मुकदमा फाइल किया जा रहा है तो वहाँ पे प्लीडिंग जो होती है वो सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल जो भी होता है उस इंस्टीट्यूशन का, जो प्रिंसिपल ऑफिसर का ऑफिस का, तो नेचुरली उसके द्वारा उसको साइन किया जाएगा. इन वेरिफिकेशन क्लॉज वन शुड डिनोट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द पैराग्राफ व्हाट इज वेरीफाइड आउट ऑफ हिज ओन नॉलेज.
एंड व्हाट ही वेरीफाइड अपॉन द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड, वो सब चीज़ इसमें लिखी जाती है कि ये मेरे नॉलेज में, मैं इसे वेरीफाई करता हूँ, या फिर मेरे को ये इंफॉर्मेशन किसी दूसरे से रिसीव हुई है, उसके आधार पे मैं वेरीफाई करता हूँ, दैट बिलीव्स टू बी ट्रू। तो दीज आर द सर्टेन रूल्स ऑफ प्लेडिंग। तो ये मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्टिव पोर्शन बताया है, दैट मस्ट बी रिमेंबर्ड व्हाइल राइटिंग द प्लेंट। And if you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.